Good morning to all of you. In today's class, as you know, I am in trigonometry. Before exercise 8.1, this question I have taken from solved example, question number 5. In this question, you can see in triangle OPQ, which is right angled at P, OP 7 centimeter, OQ minus PQ 1 centimeter. Then find the values of sin Q and cos Q. So for this question, first of all, I have to draw a diagram of right angle triangle. At P, there is a right angle. This is O. And this is O and this is Q. So triangle is OPQ. At P there is a right angle that is 90 degree. It is given in question OP 7 centimeter. So this is 7 centimeter. And the relation between two sides OQ and PQ, the difference of OQ and PQ is 1 centimeter. OQ is the longest side here, that is hypotenuse, and PQ is here perpendicular. The difference of two sides is given 1. So here I will let OQ be x सेंटीमीटर. हमने OQ को x सेंटीमीटर लेट कर लिया. It is given OQ minus PQ equal to 1. OQ I have supposed x minus PQ equal to 1. So PQ equal to x minus 1. तो PQ आ गया x minus 1. अब यहाँ मेरे पास तीनों साइड आ गया राइट एंगल ट्रायंगल में. तो इन ट्रायंगल OPQ OQ स्क्वायर इक्वल टू OP square plus PQ square. This is Pythagoras property. Pythagoras theorem. Either property. आप Pythagoras theorem को पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर में. इसका प्रूफ है. Pythagoras theorem का प्रूफ मैं बताऊंगा ट्रायंगल ज्योमेट्री में, जिसको आप पढ़े हैं जूनियर क्लास में. h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे हम OQ का वैल्यू पुट करना चाहेंगे. OQ को हमने x लेट किया है. OP 7 है और PQ x माइनस 1 है. 7 का स्क्वायर 49 और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इधर 0 आ गया. इधर माइनस 2x प्लस 50. माइनस 2x को हम 0 के साइड लाएंगे तो 0 प्लस 2x होगा इक्वल टू 50. 2x इक्वल टू 50 तो x इक्वल टू 25. 50 अपॉन 2 दैट इज 25. यानी x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया. x जिसको OQ को हम x लेट किए थे तो OQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया. तब हम यहाँ पे PQ फाइंड कर लेंगे. x माइनस 1 that is 25 minus 1 24 सेंटीमीटर. अब मुझे दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है साइन Q और कॉस Q. तो पहले हम साइन Q फाइंड करना चाहेंगे. एज यू नो साइन इक्वल टू P अपॉन H. साइन Q यहाँ है, ये एंगल है. हमने आपको बताया था कि किसी भी एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वह P होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो Q के सामने का साइड जो है वो OP है, तो यानी P हो गया 7 और H हाइपोटेन्यूज यानी जो कि OQ है X जिसका वैल्यू 25 आया था. तो साइन Q 7/25 हो गया. अब हम cos Q फाइंड करेंगे. cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H. तो इस एंगल के लिए Q के लिए जब P होगा 7 तो B का वैल्यू होगा PQ यानी x माइनस 1, जिसका वैल्यू 24 हमने निकाला है यहाँ पे. तो 24 अपॉन 25. Thus
साइन क्यू इक्वल टू 7/25, जिसको P/H फॉर्मूला से निकालेंगे, और कॉस क्यू इक्वल टू 24/25, जिसको B/H के फॉर्मूला से निकालेंगे। इस फिगर में Q वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है OP वो 7 सेंटीमीटर है, जो कि P है, और ये जो PQ है वो B है। तो हमने P, B और H का वैल्यू पुट किया, जैसे कि साइन Q और कॉस Q को मैंने निकाला। नाउ here I have taken question 6 of exercise 8.1. Question is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then prove that angle A equal to angle B. Yes friends, angle A and angle B, if these are acute, then obviously angle C will be right angle. So according to question, here I will draw a diagram of right angle triangle. It is given in the question that angle A and angle B are acute. So suppose this vertex is A and this vertex is B. So obviously C will be 90 degree. Now this is angle A and this is angle B. So it is given in the question cos A equal to cos B. Now I will find here cos A equal to cos B, तो cos equal to B/H, and here also cos equal to B/H, but here angle is A and here angle is B. So for both angles B will be changed because H will never change, because H is the longest side, that is hypotenuse. So for cos A, what is B here? If this is A, then obviously this will be perpendicular. So here AC will be base for angle A. So at the place of B I will put here AC, and hypotenuse is given AB. And for cos B what will be B? तो this is angle B. इस एंगल के लिए ये सामने वाला साइड P होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है ये हो जाएगा बेस, तो दैट इज BC will be base and H is AB. So AC upon AB equal to BC upon AB. AB cancel. So here AC equal to BC. AC equal to BC. If AC equal to BC, then we can see angle opposite of AC is angle B, and angle opposite of side BC is angle A. So angle B equal to angle A, that is angles opposite to equal side are equal. Angles opposite to equal side are equal. This is called the property of isosceles triangle. So you can write angle A equal to angle B, hence proved. Now I am taking here another question from exercise 8.1. Question number 8. It is given कि if 3 cot A equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A और नॉट। कंडीशन है कि 3 cot A इक्वल टू 4, तो चेक करना है कि दिस इक्वल टू दिस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो 3 cot A इक्वल टू 4 से हमने cot A का वैल्यू फाइंड कर लिया 4/3। यू नो cot इक्वल टू B/P, सो B इक्वल टू 4x एंड P इक्वल टू 3x। यहाँ छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का ABC। तो cot A इक्वल टू B/P, तो इस एंगल के लिए B हो जाएगा ये और P होगा ये। तो B दिया हुआ है 4x और P दिया हुआ है 3x। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं h इक्वल टू √P² प्लस B²। P का वैल्यू दिया हुआ है 3x
b का वैल्यू दिया है 4x, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 25x स्क्वायर अंडर रूट जिसका वैल्यू आएगा 5x। अब हम LHS में पुट कर देंगे। हम LHS क्या दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a जो cot a का इन्वर्स होता है, तो यदि cot दिया हुआ है 4/3 तो tan हो जाएगा 3/4, तो 3x/4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x/4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x और x कैंसिल, x और x कैंसिल। दिस इज 1 माइनस 9 अपॉन 16 एंड हेयर दिस इज 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब 16 1 जा 16 माइनस 9 दैट इज 7/16, 16 1 जा 16 प्लस 9 25/16। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 16 ऊपर और 25 नीचे, 16 16 कैंसिल, 7/25। ये LHS आ गया। अब RHS में हमको निकालना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h और साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो b, तो यहां पे b का वैल्यू दिया हुआ है 4x और h का वैल्यू दिया हुआ है 5x, इसका स्क्वायर, p दिया हुआ है 3x और h दिया हुआ है 5x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, 7/25। तो RHS भी 7/25 आया और LHS भी 7/25 था। Therefore LHS equal to RHS, hence proved. So we can write that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus tan square a. This is absolutely right. Now students, I have taken here new topic. अब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। 8.1 आपको सोल्व करना है HW में। जो भी प्रॉब्लम आएगा मुझे आप बताएंगे। अब जो न्यू टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा, दैट इज sin 30, sin 45, sin 60, cos 40। इस तरह वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो वैसे इसका एक टेबल है, जो टेबल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जिसको आपको लर्न करना है और लर्न करने का टेक्निक भी बताऊंगा। तो यदि आप उस टेबल को दिमाग में सेव कर लीजिएगा तो फिर इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए आसान होंगे। तो हम सबसे पहले कुछ दिखा देता हूं कैसे निकलता है। तो हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाया ABC, ये 90 है और ये दोनों साइड को मैं इक्वल ले रहा हूं। तो ABC is an isosceles right angle triangle। राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस है, दैट इज AB इक्वल टू BC। तो अब मैं इस इक्वल साइड को A लेट कर लिया, A फॉर साइड। तो लेट AB इक्वल टू BC BA यूनिट, यानी P हो गया A और बेस हो गया, बेस भी A हो गया। तो अब यहां पे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, अब ये 90 है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल यदि इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो यहां पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देता हूं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे मुझे AC फाइंड हो जाएगा। AB का वैल्यू A है, BC का भी वैल्यू A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। इससे AC आ गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, ये हो गया रूट 2A। A बाहर है और 2 रूट के अंदर है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 2A। अब मुझे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 45 लेते हैं, साइन 45, बिकॉज यू नो दैट हेयर AB इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C। अभी आपने पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड,
यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसीलिए दोनों एंगल्स इक्वल है तो 45 और 45 हुआ, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 90। अब हम साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे। यू नो साइन इक्वल टू पी बाय एच। तो कोई भी एंगल ले लीजिए, चाहे ए पे ले लीजिए चाहे सी पे, दोनों 45 है। तो हम यदि ए पे लेते हैं तो इस एंगल के लिए जो सामने वाला साइड होगा वह पी होगा यानी ए, और एच जो होगा वह फिक्स है, हाइपोटेन्यूज √2a। ए कैंसिल, साइन 45 1/√2। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आपसे कोई साइन 45 का वैल्यू पूछे तो 1/√2 आपको बताना है। अब आइए cos 45 पे। cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो यहाँ पे b का भी वैल्यू यदि हम इस एंगल को लेंगे तो b भी a है, तो a/√2a। यहाँ भी a कैंसिल, तो cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 हुआ। साइन 45 और cos 45 दोनों इक्वल होते हैं। अब आ जाइए आप cosec 45 पे। साइन का उल्टा cosec होता है, तो cosec का फॉर्मूला होगा h/p, h√2a और p हो गया a कैंसिल, तो cosec 45 √2 हुआ। क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है और साइन का कन्वर्स cosec होता है, तो यदि साइन 1/√2 है तो cosec क्या होगा, √2 होगा। अब हम sec 45 निकालेंगे। sec cos का इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स cosec होता है, cos का इन्वर्स sec होता है। तो यदि cos b/h है तो sec हो जाएगा h/b। h है √2a, b है a कैंसिल, sec 45 √2। अब हम आएंगे tan 45 पे। tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो यहाँ पे p भी a है और b भी a है, तो a/a 1। यदि आपसे कोई tan 45 का वैल्यू पूछे तो 1 बताएंगे आप। अब आइए cot 45 पे। तो cot 45, cot का फॉर्मूला b/p, b और p दोनों इक्वल है, a और a, that is 1. So here I have calculated all the trigonometric ratios. आपको पता है कि there are 6 trigonometric ratios जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सारे trigonometric ratios में हम 45 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं, जिसको मैं आपको टेबल के थ्रू से भी दिखाएंगे। तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, cosec 45 √2, sec 45 √2, tan 45 1, cot 45 1। tan का कन्वर्स cot होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 का कन्वर्स 1 ही होता है, इसलिए cot 45 भी 1 हुआ। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 45 का वैल्यू हुआ। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोसीड फ्रॉम हेयर इन एक्सरसाइज 8.2. सो टुडेज होमवर्क इज solve exercise 8.1 in HW copy and all solved example also. जितने भी solved example हैं इसको आपको CW में करने हैं, और जितने होमवर्क हैं 8.1 के उसको HW कॉपी में करने हैं। Thus I want to finish today's class. Goodbye to everyone.